ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار بندہ جب دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک کہتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور روزے دار بندہ کہ جس کے لیے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، وہ روزے دار بندہ کہ جس کے لیے مغفرت کی دعائیں پرندے کر رہے ہیں، وہ روزے دار بندہ کہ جس کے لیے مغفرت کی دعائیں دلوں میں رہنے والی چیونٹیاں کر رہی ہیں۔ اس روزے دار کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اور جب یہ روزے دار بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ روزے دار کا مقام ہے، اس لیے عبادات کی کثرت کیا زیادہ کریں، ہم صدقات کا، خیرات کا خوب اہتمام کریں۔ تیسری چیز جو اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں کرنی ہے، ہم اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی،
کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ معزز حاضرین، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی مناسبت سے اپنے پاک گھر کے اندر بیٹھنے کی، دین کی باتیں سننے کی توفیق میں رحمت فرمائی۔ کل کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر ہم جب اپنے اسلاف و اکابر کے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس رمضان المبارک کے اوقات سے کس قدر فائدہ حاصل کیا، کس قدر اس کے اوقات کی قدر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان المبارک کے علاوہ کی زندگی کیسی، اور رمضان المبارک مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس قدر فرمایا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مقدس، بابرکت، عظمت والا مہینہ جو کل کے بعد انشاءاللہ آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر ان مردوں سے پوچھو جن کو یہ مہینہ حاصل نہیں ہو رہا۔ گزشتہ سال جو ہمارے درمیان بہت سے بھائی بزرگ موجود تھے، مگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہمیں اپنے وقتوں کو قیمتی بنانا ہے، اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو خوب گڑ گڑا کر ہمیں منانا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب کسی مالک کا غلام بھاگ جائے اور پھر مالک اس غلام کو پکڑ لے تو غلام کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں میں پڑتا، اس کی منت سماجت کرتا ہے، مجھ سے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے، میں بھاگ گیا تھا، میری غلطی تھی، میری کوتاہی تھی، مجھ سے جو ہوا غلطی ہوئی لیکن مجھے معاف کر دے۔ تو وہ غلام اپنے آقا کو ہاتھ جوڑ کر اس کے پاؤں میں پڑ کے اس کی منت سماجت کر کے اس کو مناتا ہے، اے اللہ ہم 11 مہینے آپ کے در سے دور تھے، ہم ادھر ادھر غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا، ہم سجدوں میں پڑھ کر، بلکہ آپ کے گھر کے دروازے پر، آپ کے گھر میں آ کر ہم یہاں بیٹھ کر اللہ آپ کو منا رہے ہیں، ہم آپ کو راضی کریں گے سجدوں میں پڑھ کر، خوب گڑ گڑا کر، اے اللہ 11 مہینے تو ہم نے آپ کو ناراض کیا لیکن یہ مہینہ ہم آپ کو منائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باقی اور 11 مہینے بھی ہم اللہ آپ کو اسی طرح راضی کریں گے۔ انشاءاللہ سب کا یہ عزم اور عہد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رمضان المبارک کا مہینے کا اس قدر انتظار رہتا تھا
आप अलैहिस्सलाम रजब के महीने में दुआ क्या करते थे? ए अल्लाह, तू हमारे इस रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, वबल्लिगना रमजान, और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। इस रजब के महीने में, शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा, और फिर साथ साथ में हमें रमजानुल मुबारक तक पहुंचा दे। हमारी जिंदगी इतनी तूल कर दे कि हमें यह मुकद्दस महीना, ये रहमतों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना, इसमें जो नेकियों का सीजन और जन्नत की जो सेल लगती है, यह महीना हमको हासिल हो जाए। आप अलैहिस्सलाम को इस कदर इस रमजानुल मुबारक का इंतजार रहता था, और जब यह महीना आ जाता था, रिवायात हमको बताती हैं, अहादीस नबविया हमको बताती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इस मुबारक और अजमत महीने के अंदर 3 चीजों में ज्यादा इजाफा हो जाता था। ये 3 चीजें हमें भी अपने पल्लू से बांधनी चाहिए। वो 3 चीजें, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी, अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मुबारक महीने के अंदर 3 चीजों के अंदर ज्यादा इजाफा हो जाना। नंबर 1, आप अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर खूब इबादत की कसरत करते थे, जबकि आपकी इबादत का हाल आम महीनों के अंदर यह था। हदीस हमको बताती है, हत्ता तवर्रम कदमा, आप इतनी इबादतें करते थे, आपके कदम मुबारक पर वरम आ जाता था। आप इतना लंबा सजदा करते थे, आप इतना लंबा कयाम फरमाते थे। जब आपकी आम महीनों की इबादत का यह हाल था, तो रमजानुल मुबारक के अंदर हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक महीने के अंदर आने के बाद उस महीने के अंदर आप अलैहिस्सलाम इबादत की कसरत ज्यादा करते थे, आप इबादत का खूब एहतमाम करते थे। दूसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबरकत महीने के अंदर, इस अजमत और रहमतों वाले महीने के अंदर आप जिस चीज का खुसूसी तौर पर एहतमाम फरमाते थे, वो था सदका खैरात करना। आप इस महीने के अंदर खूब सदकात करते थे, आप इस महीने के अंदर खूब खैरात करते थे। आप अलैहिस्सलाम का इस मुबारक रमजानुल मुबारक महीने के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तीसरा अमल जो आपका खुसूसी तौर पर इस महीने के अंदर होता था, आप अलैहिस्सलाम दुआओं के अंदर इजाफा फरमाया करते थे, आप खूब गिड़गिड़ाते थे। जबकि आपका और महीनों के अंदर दुआ का आलम यह था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब मैं सुबह के वक्त आपका मुसल्ला उठाती थी, आपका मुसल्ला आंखों से निकले हुए आंसुओं से इस कदर तर होता था कि मैं उनको उस मुसल्ले को निचोड़ा करती थी। ये आप अलैहिस्सलाम का आम महीनों के अंदर रोने का, दुआ मांगने का एहतमाम था। और फिर आप अलैहिस्सलाम रमजान के आने के बाद इस महीने में खूब दुआएं मांगते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए हम इबादत की कसरत क्या ज्यादा करें, हम सदकात का, खैरात का खूब एहतमाम करें। तीसरी चीज जो इस मुबारक महीने के अंदर हमें करनी है, हम अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगे। हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार बंदा जब दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उसकी दुआओं पर लब्बैक कहते हैं, उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और रोजेदार बंदा कि जिसके लिए समंदर में तैरने वाली मछलियां मगफिरत की दुआएं कर रही हैं, वो रोजेदार बंदा कि जिसके लिए मगफिरत की दुआएं परिंदे कर रहे हैं, वो रोजेदार बंदा कि जिसके लिए मगफिरत की दुआएं दिलों में रहने वाली चींटियां कर रही हैं। इस रोजेदार का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, और जब ये रोजेदार बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं करते। ये रोजेदार का मकाम है। इसलिए हमें इन 3 चीजों पर खुसूसी तौर पर हमें अमल करना चाहिए, हमें इबादत की कसरत करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आम महीनों के अंदर तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, आम महीनों के अंदर इशराक नहीं पढ़ी जाती, आम महीनों के अंदर चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, आम महीनों के अंदर अव्वाबीन की नमाज नहीं पढ़ी जाती, सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ी जाती। इस महीने के अंदर थोड़ी सवेरा उठें, तहज्जुद की नमाज, चाहे 2 रकात ही पढ़ें, लेकिन तहज्जुद की नमाज पढ़ें, इशराक की नमाज भी पढ़ें,
चाश्त की नमाज भी पढ़ें, अव्वाबीन की नमाज भी पढ़ें। हमें इस महीने के अंदर इबादत का खूब एहतमाम करना चाहिए। और महीनों के अंदर हम सदका महीने के अंदर करते थे, एक बार कर लिया, कम कर लिया। इस महीने के अंदर हर हफ्ते 10वें दिन जब भी अल्लाह हैसियत दे, गुंजाइश दे, हमें सदका खैरात करते रहना चाहिए। और इस महीने के अंदर हमें दुआओं का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। ये इतना मुबारक महीना अल्लाह हमको अता कर रहा है। उन मुर्दों से पूछो जो गुज़श्ता साल हमारे दरमियान थे, लेकिन इन साल हमारे दरमियान नहीं है, किस कदर वो इस महीने के लिए बेताब और बेचैन। अल्लाह ने हमको ये महीना अता किया। ये कल के बाद इंशाअल्लाह रमजान शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस महीने की इसी तरह कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, जिस तरह हजरत इमाम आजम ने की, जिस तरह इसकी कदर शेखुल हिंद ने की। इसकी कदर इस तरह करें जैसा हजरत मौलाना रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। जिस तरह हमारे असलाफ करते थे, हमारे अकाबिरीन करते थे, हमें भी इस महीने की कदर इसी तरह करनी चाहिए। ये इतना मुकद्दस, मुबारक, अजमतों वाला महीना है कि इसकी पहली तारीख को जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। बल्कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि रमजान के महीने से पहले पहले जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जाती है, जन्नत को सजाया जाता है। इसकी मिसाल यूं, हमारे हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जन्नत को इस तरह सजाया जाता है मोमिनों के लिए जिस तरह दुल्हन को दूल्हा के लिए सजाया जाता है, इस तरह जन्नत को सजाया जाता है ईमान वालों की। ये महीना वो मुकद्दस महीना कि इसी महीने के अंदर आसमानी तमाम किताबें नाजिल हुई। इसी महीने के अंदर ये मुकद्दस महीना कुरान करीम से खास मुनासबत रखता है। इसी महीने की 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर सारा का सारा कुरान करीम नाजिल फरमाया, इसी महीने की 27 तारीख को। और फिर आसमानी दुनिया के बाद से जैसी जरूरत पड़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अंदर 23 ईयर्स आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 23 साल की मुद्दत में कुरान करीम नाजिल हुआ। यकबारगी लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर इसी महीने की 27 तारीख को नाजिल हुआ। तो जब इस महीने के अंदर यह कुरान करीम नाजिल हुआ तो हमें इस महीने के अंदर पहला काम खुसूसी तौर पर कुरान करीम की तिलावत करते रहना चाहिए। हजरत इमाम आजम, कौन नहीं जानता हजरत नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, जो सबसे बड़े इमाम हैं, कौन नहीं जानता। आपका क्या मामूल था रमजानुल मुबारक महीने के अंदर? आप इस महीने के अंदर 63 कुरान करीम पूरा करते थे। 63 कुरान, 63। दिन में एक कुरान करीम, रात में एक कुरान करीम, और फिर 3 कुरान करीम तरावी के अंदर पढ़ते थे। 2 कुरान करीम एक दिन और एक रात, 30 का डबल 60, और फिर 3 कुरान करीम तरावी के अंदर पढ़ते थे। 60 और 3 63 कुरान करीम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक के अंदर पूरा फरमाते थे। क्या करते थे बाकी काम? हैरान होते हम अपने असलाफ की जिंदगी को पढ़कर, हमारे अकाबिरीन की जिंदगी क्या थी। हजरत मौलाना रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर क्या मामूल रहता था? आपका रमजानुल मुबारक महीने के अंदर मामूल ये रहता था, रमजान से पहले आप अपने मुरीदीन को बुलाते थे, अपने मिलने जुलने वालों को, मुतवस्सिलीन को बुलाते और कहते कि देखो अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ईद बाद मुलाकात होगी। हजरत क्यों? अरे रमजान का महीना आ रहा ना, तो इसमें हमें अल्लाह की इबादत करनी है, जिक्र अज़कार का एहतमाम करना है, तो इसलिए मुलाकात, दुआ सलाम, ये सब इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही ईद बाद होगी। और फिर हजरत 29 शाबान को रमजान से पहले एक मुरीद को बुलाते थे और किसी बड़े कट्टे को लेते, बोरी को लेते और उससे कहते देखो रमजान में जितने भी डाक आए उन तमाम डाक को इसी बोरी के अंदर रख देना, मैं रमजान में उनके डाक को पढ़ूंगा नहीं, अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ईद बाद उनके डाक को पढ़ा जाएगा और फिर जवाब दिया जाएगा, अगर जिंदगी रही। एक मुरीद को इसी काम पर लगा दिया।
हजरत के यहाँ इतना एहतमाम किया जाता था, पूरी मस्जिद आपकी भर जाती थी। अगर कोई बंदा रमजान से एक दिन पहले भी आपकी मस्जिद के अंदर एहतिकाफ करना चाहे, उसको जगह ही ना मिलती थी। पूरा पूरा महीना लोग आपके यहां पर एहतिकाफ फरमाया करते थे। यह हमारे असलाफ अकाबिर की जिंदगी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक दोस्त था, उस दोस्त को मालूम नहीं था कि हजरत का रमजान के अंदर क्या मामूल रहता है। तो वो दोस्त आ गया हजरत से मिलने जोहर के बाद। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वो दोस्त भी बचपन का दोस्त था, बिला तकल्लुफ बातें होती थी। वो आपका दोस्त आपके कमरे के अंदर चला गया, आप भी चले गए, आप कुरान करीम पढ़ने लग गए। कुरान करीम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, हत्ता कि असर की नमाज का वक्त आ गया। असर की नमाज के लिए चले गए, असर की नमाज पढ़कर फिर कमरे के अंदर आए, फिर कुरान करीम पढ़ने लग गए। वो दोस्त जो था वो कहने लगा, अल्लाह ऐसा रमजान का बुखार हमें तो ना आए, जो बुखार होता चढ़ गया तो चढ़ गया, अल्लाह ऐसा बुखार हमें ना आए जैसा हजरत को बुखार आ गया। हजरत कुरान करीम ही पढ़ रहे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं, कौन आया क्या आया, मैं तो इनका बचपन का दोस्त हूं, मुझसे कोई दुआ सलाम नहीं। तो ये हमारे अकाबिरीन का मामूल था रमजानुल मुबारक महीने के अंदर। रमजानुल मुबारक महीने की घड़ियों को आप इस तरह से गुजारा करते थे, रमजान की कदर इस तरह करते थे। और क्यों ना हो, क्योंकि ये तो सीजन का महीना है। सीजन जानते, बाग का सीजन हो तो इंसान को फुर्सत नहीं होती, ना रात की फिक्र ना दिन की फिक्र। कोई कहे भाई क्या मामला है, ना आप घर पर रुक रहे ना कहीं, भाई सीजन का महीना, बस अब मैं मेहनत कर लूं, बाद में मैं आराम कर लूंगा, बस अब मेहनत कर लूं। खाना अवेर सवेर खाया जा रहा है, नींद भी अवेर सवेर हो रही है, दिन का मामला भी बस ऐसा ही है। क्यों? सीजन का महीना है। तो ठीक इसी तरह मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना नेकियों के सीजन का महीना है, इसमें मेहनत कर लें, उसके बाद हम आराम ही आराम, फिर फायदा ही फायदा। हदीस शरीफ के अंदर आता है, जो इस महीने के अंदर बंदा मर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाते। सुभान अल्लाह, ये इस महीने की कदर है, इस महीने की ये फजीलतें हैं। और जो बंदा इस महीने के अंदर नफल पढ़ता है तो नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, और फर्ज अदा करते हैं, फर्ज का अजर 70 फराइज के बराबर कर दिया जाता है। और अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर सदका करे तो फिर लगाएं, सदक़े का सवाब कितना अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम हमको अता करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते। ये नेकियों का इस तरह सीजन का महीना है, ये जन्नत की सेल अल्लाह ने लगा दी। जैसे इतवार बाजार के अंदर सेल लग जाए, जूता है, सेल के अलावा उसकी कीमत 500 है, लेकिन जब सेल लग गई तो उस जूते की कीमत 200 रुपए, और उसके साथ ऑफर भी लग जाता है, 200 रुपए का जूता भी है, इसके साथ ये चीज भी मिल रही है, और चीजों और सेल के अलावा में महंगा, मगर जब सेल लग गई तो सस्ता। ठीक इसी तरह जन्नत की सेल अल्लाह ने रमजान के महीने में लगाती। थोड़ा कर लो फायदा, इतना थोड़ा कर लो, लेकिन फायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना अता फरमाएंगे। तो ये रमजान का महीना जो आ रहा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इस महीने के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल एक रहता था, जो दुआ मांगते थे अल्लाह, एक ये भी मामूल रहता था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व आऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह, मैं आपसे जहन्नम से पनाह चाहता हूं और जन्नत का तलबगार हूं, जन्नत मांगता हूं। ए अल्लाह, मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, जन्नत अता कर दीजिए। इस महीने के अंदर हमें इस दुआ को कसरत के साथ मांगते रहना चाहिए। छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व आऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व आऊज़ु बिका मिनन नार। मगर अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम इसका फायदा यह अता करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जहन्नम से पनाह और जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको अता करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो खरीदने आई थी एक बूढ़ी औरत, उसके हाथ में एक धागे की अटिया थी, हमारे यहाँ अटिया जिसको बोलते धागे की अटिया। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम जो धागे की अटिया जो लेकर जा रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है कि इससे यूसुफ को खरीद लोगे? वहां तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े रईस उनकी खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। तो उसने कहा ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन क़यामत का दिन
जब अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम अपने यूसुफ के खरीदारों को खड़ा करेंगे कि यूसुफ के खरीदार कौन कौन थे, तो उनमें मैं भी खड़े होंगे। तो हम भी यही कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन रमजानुल मुबारक की कदर करने वाले असलाफ को खड़ा करेंगे, उलमाए किराम को खड़ा करेंगे, सल्फ़े सालिहीन को खड़ा करेंगे, कहाँ है मेरे वो अकाबिरीन जिन्होंने इस रमजान की कदर करी थी, तो उस महीने के अंदर हम भी खड़े हो जाएंगे। ए अल्लाह 11 महीने ना तो सही, लेकिन इस महीने की एक महीने की तो कदर कर ली, हम भी उस लाइन के अंदर खड़े हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत फायदा देगा हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आग के लिए एक पहाड़ की तरह वो आग, उस वक्त की औरतें मन्नत मांगा करती थी, अगर मेरा लड़का हुआ इतनी मन लकड़ियां मैं इब्राहिम की चिता के लिए दूंगी, इतनी आग बिल्कुल पहाड़ की चट्टान की तरह। तो एक परिंदा अपनी चोंच के अंदर पानी लेकर उस आग के ऊपर डाल रहा था। तो किसी परिंदे ने उससे पूछा, भाई तुझे मालूम है कि इस पानी से आग नहीं बुझेगी? तो उस परिंदे ने कहा, मालूम तो मुझे भी है कि हाँ इस पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खलीलों में जब पूछेंगे, तो मैं भी कहूंगा, ए अल्लाह मैंने इब्राहिम की खलीली का, दोस्ती का हक अदा कर दिया। तो हम भी कहते हैं, या अल्लाह हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, गुनाह हमारे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ए अल्लाह इस महीने के अंदर हम दामन फैलाएंगे, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हम दामन फैलाएंगे, हम आपसे माफी मांगेंगे। ये महीने की जो पहला महीने का जो 10 दिन है, पहला अशरा ये रहमत का अशरा, दूसरा अशरा व मग़फ़िरतुहा, दूसरा यानी दरमियान का अशरा ये मग़फ़िरत का अशरा है, और आखिरी अशरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से खलासी का अशरा है। एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास आए, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीस सुनने की है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना कराए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कह दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सय्यदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार, वो दुआ मांग रहे हैं। एक तो फरिश्ते, फिर फरिश्तों में भी तमाम फरिश्तों के सरदार, मासूम अनिल खताया, जिनसे कोई गलती नहीं हुई, मासूम, और फिर लब्बैक आमीन कहने वाले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत ना कराई, वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। इसलिए हमें इस महीने की कदर करके अपनी मग़फ़िरत करानी है। और मग़फ़िरत क्या होगी? इस महीने के अंदर हम गुनाह ना करें। जिस बंदे ने इस महीने की कदर कर ली और गुनाह नहीं किए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरा साल वो बंदा इसी तरह का अपने मामूलात पर कायम रहेगा। अपनी आंखों की हिफाजत की, इंशाअल्लाह उसकी नजरें महफूज रहेंगी। रोजे का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम भूखे प्यासे रहें, बल्कि रोजा हमारी आंखों का भी रोजा होना चाहिए, हमारा रोजा हमारी जबान का भी रोजा होना चाहिए, हमारी शर्मगाह का भी रोजा होना चाहिए, हमारी जबान से झूठ ना निकले, किसी की गिबत ना करें, किसी की चुगलखोरी ना करें, हमारी आंखें किसी गलत जगह पर ना पड़े, हम इस आंखों से मोबाइल के अंदर फिल्में ना देखें, कुछ गलत वीडियो ना देखें, बल्कि इस महीने के अंदर बड़े वाले फोन को तो आप एक तरफ बंद करके रख देना चाहिए। इस महीने को तो आप अल्लाह के लिए वक्फ कर लें, और अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम के महीने को आप इस तरह से गुजारें जिस तरह हमारे असलाफ गुजारा करते थे, हमारे अकाबिरीन गुजारा करते थे। और फिर देखना इंशाअल्लाह ये महीना सुबह में भी रहमत, शाम में भी रहमत, तहज्जुद में भी रहमत, इफ्तारी में भी रहमत, सहरी में भी रहमत। इतना मुकद्दस महीना, इतना मुबारक महीना है, तो क्यों ना हमें इस महीने की कदर करनी चाहिए। और जब बंदा इस सहरी के वक्त में और इफ्तारी के वक्त में अल्लाह से दुआ मांगता है, ये दो औकात ऐसे हैं, सहरी का वक्त और इफ्तारी का वक्त, इसमें मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते हैं। लेकिन आम बात यह है कि उधर निगाह कभी पकोड़ों पर हो रही है, समोसों पर हो रही है, टाइम भी देखा जा रहा है, इधर उधर खाने पीने की चीज, यानी उस स्क्रीन की वक्त को हम जाया कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इन औकात से फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, हमारे अकाबिरीन इस महीने के अंदर खुसूसी तौर पर कुरान करीम की तिलावत ज्यादा करते थे। कुरान करीम हम ज्यादा से ज्यादा करें, इस्तिग़फ़ार का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।